नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां दर्ज हुए एक मामले में नाम हटाने को लेकर साइबर थाना प्रभारी द्वारा ली गई 5 लाख की रिश्वत के बाद सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने का आदेश दिया। तो वहीं डीएसपी अभिलक्ष जोशी ने बताया कि उनके पास सीबीआई से जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक दर्ज मामले में एक पक्ष से रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने साइबर थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया। खबर पठानकोट से है, जहां अबरोल नगर स्थित पुल के पास अचानक ब्लास्ट होने की वजह से दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि पुल के पास अचानक आग लगने से कचरे में पड़ी बोतल के ब्लास्ट होने की वजह से इतना शोर हुआ। फिलहाल किसी तरह की कोई जानमाल की नुकसान नहीं हुआ है। जानमाल का इन बातों का खुलासा डीएसपी ने किया। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀ? ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਡਰੇ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਸਭ ਰੇੜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਉੱਧਰੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਟੋਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਪੌਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ 12 ਸਾਲ, ਸਾਡਾ ਇਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ RTX ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਬੈਂਡਨਡ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਰੇ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿਲਰਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। खबर फरीदकोट से है, जहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अमरजीत कौर साहूके ने फरीदकोट पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। मैं वादे नहीं करूंगी बल्कि काम करके दिखाऊंगी। तो वहीं पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह कीकी ढिल्लों ने अकाली दल और आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा यानी परिणाम घोषित होगा तो आम आदमी पार्टी और अकाली दल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू कांग्रेस पार्टी ने अपने पेके पिंड फरीदकोट लोक सभा हलका तो कैंडीडेट उतारिया। मैं बहुत खुश हाँ और सारा जिहड़ा फरीदकोट हलका है वो सारा मेरे नाल वध चढ़ के हिस्सा लऊ। मेरे मोढे नाल मोढा जोड़ के आने वाली 1 जून नूं एक जिहड़ा बटन है चोण निशान पंजे ते दबाओ। मुद्दे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3 ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਗੇਮਸ ਔਰ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਹਾੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੂਗੀ। ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आकाश नगर से देर रात एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। सुबह उसकी बाइक, मोबाइल और चप्पल किरमिच नरवाना ब्रांच नहर के पास से बरामद हुआ। तो वहीं पुलिस, परिजन और गोताखोर की टीम लगातार नहर में तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। डायल 112 से फ़ोन आया, वही किरमत से बाखड़ा नरवाना नहर के पास एक मोटरसाइकिल लावर सल्ट में खड़ी है, जिसके पास चप्पलें पड़ी हैं और मोबाइल उसमें रखा हुआ है। जो सूचना पाकर तुरंत हम मौका पे पहुँचे, जहाँ पे आगे हमें जो मुद्दई थे वो भी साथ में वहीं मिले पास में ही। वहाँ पे वही सर्च चेक किया गया, भाई क्या कुछ हुआ है। उस सूचना पे ही फिर गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर दिया गया। फिर सुबह उसके बाद गोताखोर की टीम को बुलाया गया, वहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया। 4-5 किलोमीटर के एरिए में चेक किया गया, सर्च किया गया। अभी तक कोई शख्स मिले नहीं है। इसमें अभी अभियान और चेकिंग सर्च जारी है। तो अपने पत्राचार कर दिया गया है भाई गुमशुदगी का जो भी है उसको ढूंढने के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक पीजी से 7 लैपटॉप चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। तो इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। मतलब ये आया था कि वैसे इसने बांधा। खबर नूंह से है, जहां बारातियों से मारपीट का मामला सामने आया है। साथ ही हथियारों के दम पर छीना झपटी भी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सदर थाना नूंह पुलिस ने इस संदर्भ में विभिन्न धाराओं के तहत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार और उसके रिश्तेदार अभी भी इस घटना के बाद से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मामला शादी का आज ही मेरी बारात चल रही थी, लड़की की शादी थी, 2 लड़कियों की शादी थी। तो बारात चल रही थी शाम के टाइम। तो जैसे भी गांव में निकल रही थी बारात, तो चैनपाल हमारे गांव का रहने वाला है ठाकुर, तो उसके घर के आगे से बारात जा रही थी। तो उनके लड़कों ने आकर के बारातियों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद बारात चल रही थी। तो उसके बाद फिर वो पंडाल में आए थे जी, यहाँ मतलब प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ स्टेज पे चढ़ गए और जी आकर उन्होंने धक्का मुक्की दी। लेडीज ने धक्का मुक्की दी, मेरे थप्पड़ मारे और मतलब मेरे गिरबान पकड़ा और गाली गलौज दी। और बैग था मेरे हाथ में ही पैसों का, तो बैग को लूटने के लिए चले थे, परंतु बैग मैंने छोड़ा। घटना जो 23 तारीख रात की है, 23 तारीख में मेरी 2 भतीजों की शादी थी, जो है बारात गांव में आ चुकी थी। बड़ी बारात जो है अपने फेरों के प्रोग्राम पे और वरमाला का प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। दूसरी बारात जो है गांव में एंट्री कर चुकी थी। हम लोग दूसरी बारात को रिसीव करने में बिजी थे और जैसे ही पहले वाली बारात का स्टेज चल रहा था, उस समय 5 जो हैं आरोपी हैं ये, दीपक पुत्र चैनपाल और दीपक का लड़का है जो है प्रिंस, और चैनपाल का छोटा लड़का अजीत, और अजीत का लड़का जो है सचिन और ऋतिक, और एक ओमकार का लड़का है जो उसका नाम धीरज है। ये 5-6 आरोपी जो आते हैं, आने के बाद में स्टेज पे लेडीजों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, अभद्र भाषा में गाली गलौज का व्यवहार करते हुए। भाई साहब जिनकी लड़की जो है लड़कियों की शादी थी, उनसे इन्होंने बैग में छीना झपटी करी, उनके साथ मारपीट करी, रात में से मारे इनको। बाद में फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको बचाया, फिर वो वहाँ से भाग चुके थे। इतने हम लोग घर परिजन सब इकट्ठे हुए तो भाग चुके थे वहाँ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नरवाना ब्रांच नहर से 80 वर्षीय एक सिख बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई।
हाँ जी सर, बिल्कुल डायल 112 के माध्यम से कॉल हमारे पास आई थी कि नहर के अंदर कोई शव तैरता हुआ ज्योति सर से किरमच की तरफ जा रहा है। तो तुरंत टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। शव को फिलहाल साइड में लगा लिया है और शव के बारे में हम जानकारी दे दें कि 80 साल के आसपास ये सिख अमृतधारी बुजुर्ग हैं। चिट्टे रंग का पजामा कुर्ता डाले हुए, पैरों में जूते डले हुए हैं और दवाइयाँ और कुछ पैसे इनकी जेब से मिले हैं। और आपके सभी व्यूअर्स से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खबर को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हम इनके परिवार तक पहुंच पाएं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उपमंडल के गांव जुरासी खुर्द में आग लगने की घटना में खेतों में खड़े फाने जल गए। तो वहीं जानकारी देते हुए सरपंच राव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि खेतों में रीपर से कार्य किया जा रहा था और अचानक रीपर से चिंगारी निकली और देखते ही देखते खेतों में खड़े फानों में आग लग गई। तो वहीं आग से रीपर भी काफी जल चुका है। खेत में गेहूं के फानों की आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के गांव में धुआं ही धुआं हो गया। तो वहीं किसानों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसका अग लगी थी अज लगभग 40 ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਫਾਨੇ ਜਲ ਗਏ ਨੇ। ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, 112 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट ताबड़तोड़ नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट नशा तस्करों को 1200 नशीले कैप्सूल ट्रामाडोल और 28 सीसी कोडिविन और रिकोडल बरामद करके गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक मुहिम चली हुई है नशे के खिलाफ, और इसमें नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त भारत जो है वो हमारा मेन लोगो है। उसमें निरंतरता से अभियान जारी है और उसके तहत कल रात हमें जो है भरपूर कामयाबी मिली, जब हमारी कुरुक्षेत्र हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल की जो टीम है SI नरेश पेरवाल के नेतृत्व में वो झांसा रोड पे रविदास मंदिर चौक के पास मौजूद थे। तो हमें कमर्शियल क्वांटिटी के साथ एक सतीश और बिट्टू नाम के अपराधी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने अनिल विज के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 10 साल अनिल विज स्वयं काफी पावरफुल रहे हैं, तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि या तो अनिल विज पावरफुल नहीं थे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कसूरवार नहीं है। चित्रा सरवारा ने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा वासियों का प्यार और समर्थन पाया, और आगे आने वाली सरकार भी उन्हीं की होगी। इसी से विचलित होकर सरकार और उनके नेता बिना सिर पैर वाली बात कर रहे हैं। ऐसे साबित होता है कि जनता में ना तो उनकी पकड़ है और ना ही उनका कोई जनाधार बचा है। कि उनको अंदर डाल देते तो पता चलता कि वो कितने पावरफुल हैं। हम ये कहेंगे कि 10 साल अनिल विज जी तो पूरे पावरफुल रहे हैं, तो उन्होंने डाला क्यों नहीं। तो इससे एक ही बात साबित होती कि या तो अनिल विज जी पावरफुल नहीं थे या भूपेंद्र हुड्डा जी किसी भी तरह से कसूरवार नहीं थे। और हम यही कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 2 टर्म्स यहाँ पर लोगों का जो है नेतृत्व किया, प्यार पाया, समर्थन पाया, और अभी आने वाली आगामी सरकार भी उन्हीं की होएगी। और कहीं ना कहीं इस बात से विचलित होकर भाजपा और भाजपा के नेता इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जिनका कोई जनाधार, कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है और ना ही इनकी किसी भी तरह से पब्लिक में रिसेप्टिविटी है। अगली खबर अंबाला से है, जहां किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 10वां दिन है। तो वहीं इन 10 दिनों में प्रभावित रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। आज भी 1657 रेलगाड़ियां आंदोलन से प्रभावित हुई हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस और 412 पैसेंजर ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं। बाकी कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया और कुछ ट्रेन के रूट बदल दिए गए। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशान हालत में बैठे देखा गया और उनका यह कहना है कि वो कल से स्टेशन पर बैठे हैं और अभी तक ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है, जबकि उनको जरूरी जगह जाना है। सुबह से बैठे हैं सर यहाँ, नहीं कल 3 बजे गए,
और 4:55 का टाइम था ट्रेन का। सारी रात में नहीं आई और अब तक बैठे हैं, इंक्वायरी पूछते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं बस। बाकी परेशानी काफ़ी है, क्या बोलने से ज़्यादा। बस आप खुद देख रहे हो, ये सारे यात्री बैठे हैं। हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, वैसे बरेली जाना है। पता नहीं सर, ऐसे कौन बताता है। वैसे तो ये किसान आंदोलन की वजह से रूट बंद है और इसको इधर दूसरे रूट से लेके आया जा रहा है ट्रेन को, इसी वजह से शायद लेट है। चलो वैसे तो मैं भी किसान हूँ, लेकिन परेशानी तो है। अगर हम यहाँ यात्रियों में देखें या अपनी भी इस हालात को देखें तो परेशानी तो है। बेशक वो किसान है, मजदूर है, कोई भी है, मतलब तो यहाँ के हालात की तो परेशानी है जी। बाकी वहाँ किसान बैठते हैं, वो अलग बात है। मोहम्मद कलीम जी, कल हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं सर ट्रेन के वास्ते। हमको ट्रेन बुकिंग है, एसी वाला टिकट लिया हुआ है, वो भी नहीं आ रही गाड़ी अभी तक। ये अम्बाला से गोंडा तक जी। और कहते हैं कुछ नहीं, कहते 2 घंटे के बाद रहे, 3 घंटे के बाद आ रहे, 2 घंटे के बाद आ रहे। वो खाली टाइम दे रहे हैं हमको, ये कुछ बता नहीं रहे हैं कि रद्द कर दिया हमने, क्या कर दिया। यही रद्द कर दिया, हम लोग अपने घर तो जाए आराम से। अब हम वेट कर ही रहे हैं सर, नहीं करेंगे तो क्या कहते, पैसे भी वापस नहीं होंगे। अब परेशानी तो हुई है, यहाँ पर पैसे कहे थे कि पैसे नहीं आओगे, वापस आगे पटियाला वापस जाओ, जहाँ से आए वहाँ वापस करो जाके। हम कहाँ दौड़ेंगे साहब। अभी तक टोटल 1657 1657 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें से अफेक्ट हुई हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और 756 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 412 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और कुल मिला के अभी तक जो डाइवर्जन, शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन है, वो 147 ट्रेन का है। तो टोटल 1657 ट्रेनें आज मॉर्निंग तक की इफेक्ट है। देखिए, मैनेज करना तो डिफिकल्ट हो ही रहा है, क्योंकि डाइवर्टेड ट्रेनें जो चल रही हैं, सिंगल लाइन सेक्शन होने के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट भी हो रही हैं इस चक्कर में। और जो डाइवर्टेड और कैंसिलेशन ट्रेन हैं, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। बाकी अब ये स्थिति तो तभी सुधरेगी जब किसान यहाँ से हटते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बीज की कालाबाजारी को लेकर दुकानदार के खिलाफ दुकान के लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर कृषि विभाग कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं किसानों ने मौजूदा सरकार और आला अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लगाई। आजकल ब्लैक हो रही है 7501 बीज है जीरी का, उसकी ब्लैक हो रही है और ये ब्लैक कोई दुकानदार आम नहीं कर सकता जब तक अफसर की साइन ना हो। यहाँ डीडीए एसडीओ जितने भी हैं, ये सारे भ्रष्ट हो रहे हैं, दुकानदारों से पैसे लेते हैं। अगर ये ईमानदार हो जाए, एक बीज का दाना भी बाहर नहीं जाता। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हक कहीं राजपुरा जान लग रहा है, कहीं मतलब पंजाब जान लग रहा। तो बीज हमारे किसानों ना मिलकर हम जाते हैं, जो किसानी निर्माण तो मिलता भी नहीं है। अगर कोई हमारा वैसा किसान चले जाए, उसने जैसे 1716 रुपये करता है, 3 किलो बीज है, उसको 3140 रुपये का देने का काम करेगा। ये ब्लैक सारी गड़बड़ करा रहे हैं जितने बैठे हैं भीतर भ्रष्ट अधिकारी। डीडीए से कल मिलने से जवाब दीजिए, हमने कहते जी ये रद्द करे है, आपने इसको मतलब कैंसिल करो इसका लाइसेंस। उसके लिए भी हमारे की बात नहीं सुनी है। तो ऐसे भ्रष्ट आदमी है कि यहाँ कुर्सी पर बैठने को कोई अधिकार नहीं है। और 10 मिनट है इनके पास, अगर ये 10 मिनट तक बाहर आवा, ठीक है, नहीं हम ताला लगाएंगे इसका। क्योंकि जो भ्रष्ट आदमी है, उसका चोर आदमी का कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं। जो मैंने न्याय नहीं दिला सकता, वो क्या अफसर है। शहीद भगत सिंह इतना बढ़िया देश दे के वहाँ जाती है, हमारा माहौल दे के कि आप पढ़ो लिखो, आपका बोलने का अधिकार है, सब कुछ है। ये भ्रष्टों का पैसे के लालच में इस देश का विनाश कर दिया इन लोगों ने। और ये तो सीएम सिटी है भाई, सब सीएम सिटी में इतना बुरा हाल है। यहाँ का तो सीएम है, वो नैब सैनी, क्या नाम है उसका, वो सीएम है। तो सीएम सिटी में इतना बुरा हाल हो रहा है, तो और आम सिटियों में क्या होगा। की शिकायत आई थी, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है, इनका ये कहना है कि रद्द नहीं किया है, रद्द कर दिया गया है। कल आदेश जारी हो चुके हैं। रद्द होने के बाद ये प्रक्रिया है, सीधा किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं, उससे जवाब मांगा गया है, उसके जवाब के उपरांत कार्रवाई होती है। 2 दिन के अंदर अंदर उससे दुकानदार से जवाब मांगा गया है, उसका नोटिस वगैरह ये है, सारा आपको दिखा देगा। जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी, हमने लिख के दे दी। जो इनके फैक्ट्स थे वो हमने लिख के दे दिए थे, जो टीम वहाँ गई थी। अब उनको लाइसेंस को रद्द करके, उससे निलंबित करके, उससे 2 दिन के अंदर जवाब मांगा।
खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी कोर्ट में कार्यरत जज के रसोइया से मोबाइल झपटमारी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो वहीं गांधीनगर पुलिस थाने के जांच अधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर कलकत्ता नर्सरी के पास घूम रहे 2 युवकों को शक होने पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ से खुलासा होने के बाद दोनों आरोपी मनोज तिवारी मोती बाग, हिमांशु निवासी विशाल नगर के खिलाफ केस दर्ज कर आज कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये सर कल पकड़े थे इनको कलकत्ता नर्सरी के पास से जी। इन्होंने दिनांक 3/4/2024 को जी एक संजय कुमार नाम का व्यक्ति था, जो एक जज साहब के पास कुक लगे हुआ है जगाधरी कोर्ट में। तो वो रात के समय C7 होटल से अपने घर जा रहा था जी, मोती बाग कॉलोनी में। तो जब वो त्यागी गार्डन में पहुंचे जी और वहाँ एक सुनसान जगह थी, ये दोनों वहाँ मिल गए जी उसको। इन्होंने क्या करा, उसका मोबाइल छीन लिया जी। दोनों ने जी। क्या नाम है सर इनका दोनों? एक का मनोज कुमार है जी, एक का हिमांशु कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? एक मोती नगर का, यहाँ मोती बाग कॉलोनी का जी, और एक विशाल नगर यमुनानगर। इससे पहले भी कोई वारदातें की गई हैं? हाँ, पहले भी ये चोरी में है सर दोनों। अच्छा। इनके एक के खिलाफ, इनके दोनों के एक मुकदमा चोरी का दर्ज हो रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने जब पकड़ा तो फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया भाई हम जो है शुरू से ही नशा करने के आदी हैं और हमने नशा पूरा करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी, जिस लिए हमने उस व्यक्ति का मोबाइल छीना था जी। अगली खबर बरनाला से है, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में नशे की सप्लाई होने लगी है। इसी के अंतर्गत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2 अलग अलग मामलों में 3 कर्मचारियों को भारी मात्रा में भुक्की के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से XUV कार के अलावा 19 क्विंटल पोस्त भी बरामद किया है। तो वहीं एसएसपी ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और नशे को लेकर पुलिस सख्त है, किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जी, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड DGP पंजाब पुलिस दी बरनाला पुलिस दी एंटी ड्रग कैंपेन लगातार जारी है। ਉਹਦੇ तहत ही साडी डिटेक्टिव विंग, जिसमें SPD, DSPD, DSP बरनाला इंचार्ज स्पेशल ब्रांच इंचार्ज CIA, उन्होंने वधिया उपलब्धि हासिल की है, जिहदे विच कि असीं कल एक पर्चा दर्ज किया है। ਉਹਦੇ विच एक एक्यूज हैगा हुक्मा राम, जो कि बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है, ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार किया। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ट्रक सीगा ਉਹ भी असीं कस्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ लिया। ਜਦੋਂ चैकिंग कराई गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 बैग्स ऑफ पॉपी हस्क, जिहदा कि वजन 18 क्विंटल 1800 kg बनता है, वो असी बरामद किया है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ एक गुरसेवक सिंह हैगा कानगढ़ घराचो PS पात्रा पटियाले ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ भी असी गिरफ्तार किया हैगा। जो ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ पता ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक ਹੋਰ एक्यूज। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।